Good morning, students. Today we are starting with another chapter, The Swan Car of Nabha. It is written by Minnie Manon. India's roads are chock-a-block with cars nowadays. But there was a time when cars were owned only by the wealthiest of people and were an object of marvel for the masses. Read this story to learn about a unique car that caused a stir in pre-independence India. Now this is a story of that time when only few wealthiest people they have the car, rest of the people don't own any car. Imagine a car in the shape of a swan which could hiss and throw boiling water from its nose to clear the streets of pedestrians. What is pedestrians? That is people walking along the street. So imagine the car is in shape of swan and it hisses to create a sound and throws boiling water on the people who were walking on the road. There was even a rumor. What is rumor? Piece of information that people talk about which may not be true. There was even a rumor mentioned in the accounts of those who saw it in 1920s and 30s that if the Maharaja was pleased with someone, the swan car could lay in. Now what is the meaning of accounts? It is reports of description of events. So there was a rumor that a Maharaja in 20s and 30s he had that car, and if he was pleased with someone, that car could lay eggs of gold. If Maharaja is happy with the person, then the swan car laid golden eggs. Egg of gold causing a stampede in the streets. Egg of gold means people were not agree to accept this thing, accept the fact that a car laid the golden eggs, and the group of people they suddenly come running in the same direction in excitement of panic to see the golden eggs. This quirky and bizarre car was once owned by the Maharaja of Nabha and hence became popularly known as the Nabha Swan car. So this quirky, what is quirky? That is odd or unusual. And bizarre, what is bizarre? That is very strange in an amusing way. And this car was owned by a Maharaja of Nabha. Nabha is the name of a place, and it became popular with the name of Nabha Swan car. Before 1947, there were several large and small princely states in Indian subcontinent. 565 to be precise. Precise means exactly it was 565. So before 1947, our India was ruled by Europeans, Englands, and there were princely states. The prince used to rule over the states. These princely states ruled over almost 40% of the land. Of the many kingdoms, Nabha, which covered an area of 900 square miles, was located in Punjab. So 40% land was owned by other princely states, while rest of the land was covered by Nabha, and it was 900 square miles, and it was located in Punjab. The kingdom may have been small, but the Maharaja of Nabha was rich. Like many other princely states, the kingdom's vast wealth came from the revenue from the rich fertile soil. What is revenue? Revenue is the income that is generated for a government or a company. So though the state was small, छोटी सी जगह थी, but बहुत जो है rich था ये वाला महाराजा नाभा, और इनको जो income है वो कहाँ से आती थी? Because of the fertile soil of the place. This enabled the prince to indulge themselves in expensive habits and toys such as fancy car. Indulge is to involve. So इतनी अच्छी इनकम थी क्योंकि पंजाब एक फर्टाइल लैंड थी, तो वहाँ से बहुत अच्छी इनकम उनको जनरेट होती थी. तो वो जो प्रिंस थे वहाँ के, वो अपने आप को इन्वॉल्व करते थे एक्सपेंसिव हैबिट्स, एक्सपेंसिव कॉस्टली हैबिट्स, जैसे टॉय कार्स रखना या फैंसी कार्स ओन करना. It is not surprising then that one of the first motor cars ever brought to India was owned by Maharaja Rajinder Singh of Patiala. So आपको इस चीज़ के लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए, अमेज नहीं होना चाहिए ये सुनकर कि जो फर्स्ट कार इंडिया में आई थी वो महाराजा राजेंद्र सिंह ऑफ पटियाला ने लाई थी. It was a French-made D. Diane Bouton car and was imported in 1892 with a number plate that read Patiala O. One can only imagine what a sensation it must have made in Punjab's
कंट्री साइड। सो ये कार कहाँ से लाई थी महाराजा राजेंद्र सिंह ने? फ्रेंच मेड कार थी ये, एंड कार कंपनी का नाम था डी डायन बोटॉन कार, एंड इम्पोर्ट किया गया था। इम्पोर्ट दैट इज़ टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम अनदर लैंड, और इसकी नंबर प्लेट पे लिखा होता था पटियाला ओ और पटियाला 0। सो आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट हुई होगी लोगों को, वहाँ के पंजाब के लोगों को, जब उन्होंने पंजाब के कंट्री साइड्स में, कंट्री साइड्स क्या होता है? विलेजेस में, फील्ड्स में, टाउन सिटीज़ में जो है इस कार को देखा था। द महाराजा सब्जेक्ट्स कंसिडर्ड इट अ मिरेकल दैट दिस कैरिएज कुड रीच अ स्पीड ऑफ 10 to 20 किलोमीटर्स एन आवर। सो महाराजा के जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स हेयर मीन्स द पीपल जिनके ऊपर महाराजा रूल करते थे, उनको ये मिरेकल लगता था, अजीब लगता था, मतलब दे वर सरप्राइज्ड कि वो जो कार है, कैरिएज इज़ यूज फॉर कार, वो 10 से 20 किलोमीटर्स जो है एक आवर में स्पीड ले लेती है, विदाउट एनी हॉर्स, कैमल और एलिफेंट अटैच टू इट। और उसके ऊपर कोई हॉर्स, कैमल या एलिफेंट भी आपको लगाना नहीं पड़ता, बिकॉज व्हेन कार्स वर नॉट इन यूज द पीपल यूज टू ट्रेवल बाय एलिफेंट्स, हॉर्स और कैमल कार्ट। In 1893, a year after the Maharaja of Patiala had brought the first car to India, Rustam Kama, a wealthy Parsi lawyer from Bombay, now Mumbai, placed an order for a four-wheeled Oldsmobile steam car from an American company named Ransom Ellie Olds. Interestingly, this car would go on to make history as the first American car ever exported from the United States. अब 1893 में महाराजा ऑफ पटियाला के बाद जो है जो दूसरा पर्सन है जिसने कार ओन की थी वो था इंडिया का रुस्तम कामा। वो वेल्दी पारसी लॉयर था और बॉम्बे का रहने वाला था, आजकल जिसको हम मुंबई कहते हैं। और उन्होंने वो कार कहाँ से मंगवाई थी? अमेरिका से, एंड वो 4-wheeled ओल्ड्समोबाइल स्टीम कार थी अमेरिकन कंपनी से, जिसका नाम था रैंसम एल ओल्ड्स। एंड इस कार को लाके वुड गो ऑन टू मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट अमेरिकन। इस कार को जब उन्होंने, पारसी जो है लॉयर है, उन्होंने जब लाया तो ये एक हिस्ट्री बन गया था, हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि ये फर्स्ट अमेरिकन कार थी जो यूनाइटेड स्टेट्स से उन्होंने एक्सपोर्ट करी थी, एक्सपोर्ट करके लाई थी। मतलब एक फॉरेन कंट्री से उन्होंने, अब ये दूसरी कार थी जो उन्होंने मंगवाई थी। अदरवाइज वो जो फर्स्ट कार उन्होंने लाई थी वो लंदन से आई थी। Two of Kama's friends, Kawasji Wadia and famous industrialist Jamshedji Tata also imported the Oldsmobile cars, and by 1897 Mumbai had become a 3-car city. अब जो हमारे पारसी लॉयर हैं रुस्तम कामा, उनके 2 फ्रेंड्स थे, कावासजी वाडिया एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, और एक दूसरे थे जमशेदजी टाटा, ही वॉज ऑल्सो इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्होंने भी 2 कार जो हैं ओल्ड्समोबाइल कंपनी से मंगवाई 1897 में, और मुंबई में जो है वो 3-car सिटी के नाम से फेमस हो गई। इन द स्पैन ऑफ जस्ट 13 years, बाय 1910 मुंबई सिटी वुड हैव मोर देन 1025 रजिस्टर्ड कार्स, और 13 years के स्पैन में ही, मतलब 1992 एंड 93 के 13 years आफ्टर 1910 तक, सॉरी इट इज़ 1893 एंड 1892, सो 92 एंड 93 से लेकर 1910 तक, सो 13 years हैव पास। तो मुंबई सिटी में जो है 1025 रजिस्टर्ड कार हो गई। इन दोज डेज यू कुड ऑल्सो कस्टमाइज योर कार by buying just the car chassis and having the car's body designed as per your specification. अब उन दिनों में क्या था, जो कार कंपनीज थी वो खाली आपको कार का चेसिस नंबर बाय करना पड़ता था। चेसिस नंबर इस नंबर होता है इंजन का, उसको आपको बाय करना पड़ता था। रेस्ट कंपनी आपकी अकॉर्डिंग उस कार को कस्टमाइज कर देती थी, उसको डिज़ाइन कर देती थी। कस्टमाइज मीन्स टू मॉडिफाई फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टास्क। सो जैसा आप चाहते हो उस तरह की कार वो आपको बना देते थे। द बिजार स्वान कार ऑफ नाभा वॉज वन सच कमीशन, बट इट वॉजंट द महाराजा हु हैड फर्स्ट थॉट ऑफ इट। सो जो स्वान कार थी नाभा की, वो इसका एक पीस था, एक उदाहरण था, पीस ऑफ वर्क दैट समवन इज आस्क्ड टू डू एंड इज पेड फॉर। कमीशन इज कि उन्होंने उसको कस्टमाइज किया था स्वान की शक्ल में, स्वान के रूप में, बट इट वॉजंट द महाराजा हु हैड फर्स्ट थॉट ऑफ इट। लेकिन ये महाराजा जो हैं हमारे जो पटियाला के थे, ही वॉज नॉट द फर्स्ट वन
टू थिंक अबाउट सच थिंग कि उन्होंने कार को स्वान के शक्ल में, स्वान की वे में उसको कस्टमाइज़ करवाया था. द स्वान कार वॉज ओरिजिनली कमीशनड फॉर अ वेल्दी स्कॉटिश इंजीनियर रॉबर्ट निकोल मैथसन कॉल्ड स्कॉटी. अब ये जो स्वान कार थी, ये महाराजा नहीं थे फर्स्ट वन जिन्होंने कस्टमाइज़ कराई थी. उनसे पहले जो एक वेल्दी स्कॉटिश इंजीनियर था जिसका नाम था रॉबर्ट निकोल मैथ्यूसन, और उसका जो है निकनेम उसको दिया गया था स्कूटी बाय हिज फ्रेंड्स. तो इस जो इंजीनियर है, स्कॉटिश इंजीनियर, इसने भी वैसी ही एक कार मंगवाई थी. Mathewson was living in Calcutta at the time and was probably obsessed with swans. Obsessed for the mind to be filled with one idea or thought in a way that is not normal. So obsessed थे वो swan से, मतलब उनके माइंड में हमेशा swans चलती रहती थी. तो he was the first one जिन्होंने कार की शेप जो है swan की तरह करवाई थी. His Calcutta mansion was called Swan Park as well. So वो कैलकाटा में रहते थे मैथ्यूसन, और उनका जो मैंशन था, मैंशन मीन्स द पैलेस, द प्लेस, द हाउस, उसको भी स्वान पार्क कहा जाता था. इन 1909 मैथ्यूसन ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड एंड प्लेस्ड एन ऑर्डर विद J.W. ब्रूक एंड कंपनी ऑफ लोवेस्टॉफ्ट सफॉल्क टू बिल्ड अ कार इन द शेप ऑफ स्वान. अब मैथ्यूसन जो है वो 1909 में इंग्लैंड गए थे और वहाँ जाके उन्होंने ऑर्डर किया था. जो कंपनी है J.W. ब्रूक एंड कंपनी ऑफ लोवेस्टॉफ्ट सफोक, इस कंपनी को उन्होंने ऑर्डर दिया था कि एक स्वान की शेप में कार बिल्ड की जाए. अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल हेडलाइट्स देयर वर इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन द स्वान्स आइज दैट ग्लोड ईली इन द डार्क. स्पेशली ब्रशेस वर fitted to clean off the tires. What is eerily? It is a strange and scary way. अब जो हेडलाइट्स होती हैं कार की, वहाँ पे नॉर्मल जो नॉर्मल लाइट्स नहीं लगी थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगे थे जो कि स्वान की आइज़ लगती थी, और जब वो ग्लो करती थी तो दैट गिव्स एन बैड इम्प्रेशन. एक स्ट्रेंज स्केरी वे से ग्लोज करती थी. और एक ब्रशेस भी लगाए गए थे उस कार पे जो कि टायर्स को क्लीन करते थे. द कार अराइव्ड इन कैलकाटा इन 1910 एंड कॉज्ड अ सेंसेशन. अब ये कार जो है कैलकाटा में 1910 में आई थी और बहुत सेंसेशन क्रिएट किया था. सेंसेशन मीन्स द पीपल वर क्यूरियस, वर अमेज्ड, वर सरप्राइज्ड टू सी द कार. मैथ्यूसन वुड ऑफन टेक द कार फॉर अ राइड टू मैदान पार्क. अब मैथ्यूसन उस कार को लेके राइड पे जाते थे मैदान पार्क तक. द कार हैड अ स्पेशल डक्ट एट द बैक विच वुड, व्हाट इज डक्ट? दैट इज अ ट्यूब, अ पासवे. तो वहाँ से बैक डक्ट से क्या होता था? डिस्चार्ज वाइट वॉश ऑन द रोड. व्हाट इज डिस्चार्ज? गैस या लिक्विड जो हमारी कार में से निकलता है वो डिस्चार्ज होता है. तो वो जो कार थी उसके बैक साइड पे भी एक ट्यूब थी जहाँ से जो है डिस्चार्ज निकलता था. वाइट वॉश इज अ सोल्यूशन मेड ऑफ वाटर एंड लाइम विच इज़ यूजली वाइट इन कलर. सो जब वो कार चलती थी तो उसके बैक साइड पे एक ट्यूब थी जहाँ पे वो वाइट वॉश वाला सोल्यूशन निकलता था. टू मेक इट मोर रियलिस्टिक, एज इफ द स्वान हैड pooped. You all know what is the meaning of poop. ऐसा लगता था कि स्वान जो है वो पूप कर रही है जब वो डक्ट में से वाइट डिस्चार्ज गिरता था. There was even a rumor that if Matheson was pleased, a gold egg would be discharged through the same duct. अब लोगों के बीच में ये रूमर था. रूमर क्या होता है? झूठी बात, अफवाह थी कि जब मैथ्यूसन अगर किसी आदमी से प्लीज होते हैं, खुश होते हैं, तो वो जो कार है उनकी वो गोल्ड का एग देती है. The car was also equipped with 8 organ pipes and a keyboard for sound effect. What is organ pipes? Sound producing part of a pipe organ, a kind of large musical instrument with keys like a piano. Organ pipes यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का. तो जो कार थी उसमें 8 जो है ऑर्गन पाइप्स लगे थे और कीबोर्ड भी लगा था जहाँ से साउंड इफेक्ट आता था. इन ल्यू ऑफ अ हॉर्न, इन ल्यू इंस्टेड ऑफ. कार में हॉर्न लगा होता है बजाने के लिए, बट वहाँ पे कीबोर्ड साउंड इफेक्ट्स के साथ ऑर्गन पाइप्स लगा था. द प्रॉब्लम वॉज दैट एवरी टाइम द कार वुड कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा, it would cause such a sensation that the police would have to intervene. Intervene is to interrupt. तो अब ये होता था कि जब भी वो मैथ्यूसन अपनी कार को लेके रोड्स पे आते थे कैलकाटा की, तो लोग इतने ज़्यादा जो है सरप्राइज्ड होते थे एंड ईगर होते थे उस कार को देखने के लिए कि रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जाम लग जाता था
और पुलिस को आके बीच में इंटरवीन करना पड़ता था. इंटरवीन मीन्स टू इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर. तो पुलिस को भी वहाँ कंट्रोल करने के लिए, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए आना पड़ता था. Soon after the car caught the eye of Maharaja Ripudaman Singh of Nabha, who acquired it from a huge sum. इस कार के ऊपर जो है महाराजा रिपुदमन जो नाभा के थे, उनको भी पता चला कि ये कार है इस तरह की, तो उन्होंने भी ऐसी कार ले ली, बहुत अच्छी बड़ी जो है प्राइस देगी. द महाराजा वुड गो ऑन राइड्स इन हिज कार, इन दिस कार विथ हिज फैमिली. अब महाराजा अपनी फैमिली के साथ इस कार में घूमने जाते थे. इन 1919 he even commissioned a smaller car in the shape of a cygnet, that is baby swan, for his children. यहाँ तक वो इम्प्रेस थे महाराजा इस कार से, महाराजा ऑफ नाभा, कि 1919 में उन्होंने एक और छोटी कार जो है शेप करवाई और वो अपने बच्चों के लिए करवाई, और वो किस डिज़ाइन में थी, स्वान के बेबी के रूप में, दैट इज सिग्नेट के रूप में. Sadly, his subjects could not distinguish between a swan and a duck, and they began to call him Bathak Raja or the Duck King. अब जो लोग थे उस टाइम पे, they were not that much literate, तो लोग जो है डिफरेंस नहीं कर पाए कि ये स्वान है या डक है. स्वान आपको पता है क्या होता है, हंस, डक होती है बतख. तो उनको वो डक एंड स्वान का डिफरेंस नहीं पता था लोगों को, तो लोगों ने उस राजा को नाम दे दिया बतख राजा या डक किंग. Maharaja Ripudaman Singh was deposed by the British. What is deposed? Deposed means forced to give up his position. So British rule था उस टाइम इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने उनको हटा दिया उनकी पोजीशन से in 1923 for being an ineffective administrator. But the car remained with the Nabha royal family for the next 7 decades. अब जो ब्रिटिश लोग थे उस वक्त, उन्होंने उस राजा को उनकी पोजीशन से हटा दिया कि वो कोई राजा वाजा नहीं है, लेकिन कार जो है वो उन्हीं के पास रही, और वो रॉयल फैमिली के पास 7 डिकेड्स तक रही, मीन्स नेक्स्ट 70 ईयर्स तक उन्हीं के पास रही. इन 1990 बोथ द स्वान एंड द सिग्नेट कार्स वर परचेज्ड बाय द लाउमेन म्यूजियम. अब क्या हुआ, 1990 में वो जो स्वान कार थी और उसका सिग्नेट था, जो उसका बेबी कार थी, वो परचेज कर ली लाउमेन म्यूजियम ऑफ नीदरलैंड्स ने. नीदरलैंड्स का लाउमेन म्यूजियम है, वहाँ चली गई वो. वेयर दे आर ब्यूटिफुली रिस्टोर्ड एंड आर स्टिल ऑन डिस्प्ले. जहाँ पे उन्होंने अभी भी उसको अच्छे से रिस्टोर करके रखा हुआ है. व्हाट इज रिस्टोर? समथिंग दैट हैज़ बीन रिपेयर्ड और क्लीन्ड सो दैट इट लुक्स लाइक इट डिड व्हेन इट वाज न्यू. तो उन्होंने उसको बिल्कुल न्यू जैसा बना के रखा हुआ है, उसको ठीक करके रखा हुआ है, और वो म्यूजियम में रखी हुई है, और लोग आते हैं और उस कार को देखते हैं. टुडे बोथ कार्स अट्रैक्ट एडमायरर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. अब वो जो दोनों कारें हैं, स्वान और उसका बेबी कार, टूरिस्ट जो हैं वो हर तरफ से आते हैं. एडमायरर्स होता है द वन हु प्रेजेस, जो उस कार को चाहने वाले हैं, कार को देखना चाहते हैं. ऑल द पीपल कम फ्रॉम एवरी एरिया ऑफ द वर्ल्ड. रॉबर्ट मैथ्यूसन एंड द महाराजा ऑफ नाभा वुड श्योरली अप्रूव, एंड द राइटर सेज दैट वी होप दैट रॉबर्ट मैथ्यूसन को और महाराजा ऑफ नाभा को भी ये बात अच्छी लगती होगी कि उनकी वो जो कार हैं आज भी अच्छे से रिस्टोर करके नीदरलैंड के म्यूज़ियम में रखी गई हैं, और लोग जो है उनकी उस कार को देखने के लिए आते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड दिस इज़ अ नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन मीन्स रियल स्टोरी. ये फिक्शन नहीं है. फिक्शन होता है समथिंग दैट इज़ क्रिएटेड. सो दिस इज़ नॉन फिक्शन, समवॉट रियल स्टोरी. ओके.